Hello guys, welcome to BMS Academy. So today I'm going to discuss 8th lecture on विजन IAS टेस्ट सीरीज फर्स्ट, ठीक है, जो कि पॉलिटी पे बेस्ड है. आज का जो फर्स्ट MCQ है उसको देख लेते हैं. Which of the following statements are correct in the context of national emergency in India? You know about the national emergency? National emergency is under Article 352 of the Constitution, which is also known as Proclamation of Emergency. Okay, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं. President can issue ordinance on state subject if parliament is not in session. Okay. The center becomes entitled to give executive directions to state on any matter. President can cancel the transfer of finances from the center to state. देखिए, ऐसा होता है कि जब नेशनल इमरजेंसी इन्वोक होती है तो तीन तरह की पावर्स पे इम्पेक्ट पड़ता है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है, एंड थर्ड वन इज़ योर फाइनेंशियल पावर्स. ओके, तो ऐसा है, ये तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं. प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस ऑन स्टेट सब्जेक्ट इफ़ पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन. देखिए, ऐसा होता है कि जब स्टेट है, ठीक है, बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स, अब यहाँ पे सेंटर बैठा हुआ है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है, पार्लियामेंट बैठी हुई है, तो मैक्सिमम पावर्स एक स्टेट एक जस्ट डमी बन के रह जाती है उस केसेस में. इवन ऑल्दो स्टेट जो होती है वो सस्पेंड नहीं होती है. लेजिस्लेटिव पावर्स में मान लीजिए जो उसके स्टेट के सब्जेक्ट हैं अंदर 7th शेड्यूल, ठीक है, स्टेट लिस्ट बनी हुई है, उसमें जो सब्जेक्ट्स मेंशन हैं, अगर उस पर कोई स्टेट लॉ बना रही है तो बना सकती है. बट अगर उसी मेन चीज़ पे पार्लियामेंट कोई लॉ बना दे तो पार्लियामेंट का लॉ स्टेट के लॉ को ओवरराइड कर जाएगा. ओके, वैसे नॉर्मल सिचुएशंस पे पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे लॉज नहीं बना सकती, बट इन द सिचुएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट कैन मेक लॉज. बट हैपन व्हेन पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन. आपको पता है आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, एंड आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर. बट इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी एंड देयर इज नॉट एनी सेशन हैपनिंग इन पार्लियामेंट, then what happens? The president can issue ordinance, which is temporary law. Actually, this ordinance and this temporary law has the same effects as the laws passed by the legislatures or parliament. Okay, so first statement here is right, and you know the timeline or tenure of an ordinance would be 6 months and 6 weeks maximum. And I told you this thing before in last lectures that what is the ordinance. Okay, the second statement tells about center becomes entitled to give executive direction. Yes, it entitles to give executive directions. Then second statement is also right. President can cancel the transfer of finance from the center to state. Yes, actually there are some provision in which central government has to transfer some of the taxes earned from the taxpayers. Okay, that would be the divided in center and states. Okay, these are the financial powers. But in case of emergency, the president can cancel the transfer or can change the shares of the states in the finance. Okay, then all the three statements would be right in this case. So these things have been written in this whole slide, so you can go through it. Okay, so next question would be which of the following organizations publish index to measure traffic congestion in various cities across the world? Actually, if you have heard about this, or you are continuingly focusing on your current affairs, then you can answer this question. The answer would be the TomTom. Actually, this organization, which is based in Amsterdam, it is publishing this
city traffic congestion index since I think 2012. Okay, it's been now 8 years that it is continuously publishing the indexes for this, and the world's most congested city is Mumbai. Actually, what happens, the congestion, how it is measured. Let's suppose you are going to your work from point A, which is your home, to point B, which is middle in the city, and you are taking 2 hours for reaching there. That is hardly a 10 kilometer away from your house. But if you are taking 2 hours with traffic, then let's suppose you are going same destination without traffic. Okay, that is the meaning, that how congested city is and how much time it is taking to reach your destination. Okay, there are many parameters for measuring this. Okay, that is written in this slide, you can go through it. Okay, so we are going to next question. Consider the following statements with respect to fundamental duties. ऐसा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस आर्टिकल में मेंशन है, 51A. ओके, पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में प्रिस्क्राइब करा गया है. एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA. दिस इज़ रॉन्ग. वी हैव टेकन दिस फंडामेंटल ड्यूटीज़ फ्रॉम USSR, विच इज़ अर्स्टवाइल रशिया, जो कि डिसइंटीग्रेट हो गया था. वेस्टर्न यूरोप उसका कुछ हिस्सा और रशिया का हिस्सा, ये सारा का सारा क्या बनाता था, USSR. तो यहाँ से इंस्पायर होकर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाली गई हैं. एक बार अमेंड करा गया है इस चीज़ को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 51A आर्टिकल को इंसर्ट करा गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. आपको पता है 1975 वाला इरा जो था, इमरजेंसी लगी हुई थी, तो गवर्नमेंट का ये कहना था कि द सिटीजन शुड रियलाइज देयर ड्यूटीज़ वाइल दे आर enjoying the fundamental rights. So that's why these fundamental duties were incorporated in our constitution. So first statement is wrong, and C is wrong. They can be enforced by a law made by the parliament. Yes, this is right. देखिए, fundamental duties are not a legal sanction. मतलब कि अगर आप कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, जो भी आपकी टोटल ड्यूटीज़ कितनी है, शुरुआत में 10 डाली गई थी, बट अभी कितनी है, 11. एक्चुअली स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, जो कि रिकमेंडेशन देने के लिए बनाई गई थी. इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी वो 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में दी गई थी, बट सम मॉडिफिकेशन, मोस्ट ऑफ दी रिकमेंडेशन मान ली गई थी, बट कुछ और मॉडिफाई करके टोटल 10 ड्यूटीज़ को डाला गया था. 10 ड्यूटीज़ को डालने के बाद फिर एक और अमेंडमेंट होती है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002. इन्होंने इस अमेंडमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए. पहली बात तो आर्टिकल 221A के कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, जो कि राइट टू एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, समझ पा रहे हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन में को आपका फंडामेंटल राइट बना दिया गया. मतलब अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट टू पहली से लेके 8वीं तक. और दूसरा क्या चेंज करा, आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ बिलोंग्स टू DPSP. मतलब पहले तो ये चीज़ ए कहा गया था ना, एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए 45 में, फिर इसको चेंज करके क्या बोल दिया गया था कि अंटिल द एज ऑफ 6, एज 6, मतलब इसके छोटे छोटे बच्चे की डेवलपमेंट अच्छे से होनी चाहिए, ऐसा प्रिस्क्राइब कर दिया गया 45 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 45 आर्टिकल के अंदर. और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या चेंज करा गया कि हर एक जो भी माँ बाप हैं और गार्डियन हैं, उनको क्या करना है, अपने बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है. तो ये ड्यूटी जोड़ दी गई थी. और टोटल अभी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 11. तो और हाँ, ये बात ये कही गई कि कोई भी लीगल सैंक्शन नहीं है अगर आप नहीं मानते हो.
बट पार्लियामेंट कोई लॉ बना सकता है, जैसे कि फ़्लैग की आपको क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप कहीं पे भी फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट करते हुए पाए गए तो आपको 10 साल की सज़ा हो जाएगी। तो ऐसा कुछ लॉ बना सकता है पार्लियामेंट, ठीक है। सेकंड इज़ करेक्ट, तो ये भी गलत हो गया। एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन अमेंडेड ओनली वंस सिंस देयर इनकॉर्पोरेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, आर्टिकल 86 अमेंडमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट। देख लेते हैं, यही चीज़ें सब कही गई हैं मैक्सिमम। ओके, यस, एंड दिस इज ओके। तो ये चीज़ें बता दी गई हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड नोटिफाइड प्रोसीजर फॉर द कोटा एलोकेशन फॉर इम्पोर्ट ऑफ कैल्साइन पेट कोक। ओके, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर हो गया ये, ठीक है। कैल्साइन पेट कोक इन द कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेट कोक के रिगार्डिंग इन चीज़ों को देखिए। इट इज़ कार्बन रिच सॉलिड मटेरियल ड्राइव्ड फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल। ओके, देख लेते हैं। इट इज़ मोर फ्रेंडली एंड लेस पॉल्यूटिंग देन ट्रेडिशनल कोल। देखिए, इस केस में दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। एक्चुअली इट इज़ बाई प्रोडक्ट है। जब रिफ़ाइन किया जाता है ना पेट्रोलियम, जब पेट्रोलियम बनाया जाता है, रिफ़ाइन करा जाता है, रिफ़ाइनिंग के टाइम पे कुछ सॉलिड पार्टिकल मिल जाते हैं, ठीक है, और वो पेट कोक कहलाते हैं। पेट कोक, पेट्रोलियम कोक इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ कोल ऐसा कुछ नहीं है। तो इट इज़ मोर इको फ्रेंडली, नहीं यार, ये बहुत ही ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो इस पे 2018 के आसपास टोटल बैन लगा दिया गया था, ठीक है। बट 2021 के रिगार्डिंग इसको इंपोर्ट करने की बात करी गई है कुछ हद तक। और जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड हैं, ये जो ऑफिसर होते हैं, ये एक डिपार्टमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर अटैच्ड ऑफिस है। ओके, और इनका क्या काम है, फैसिलिटेट करना एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए मदद करना, तरीके नए नए ढूंढना। ओके, तो यही काम था। और तो बस इसमें यही है। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आफ्टर इंडिपेंडेंस all states were classified into 4 groups. Yes, this statement is right. A, B, C, D ऐसा पढ़ते होंगे ना लक्ष्मीकांत में, तो बिल्कुल सही ये कही गई है कि 4 ग्रुप्स में बांटी गई थी। ग्रुप क्लासिफिकेशन वाज एबोलिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फैजल अली कमीशन। ये शायद कल का ही लेक्चर था जिसमें हमने पूरी की पूरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में देख लिया गया था। तो फैजल अली कमीशन कब बनाया गया था, 1953 के आसपास, जब फर्स्ट क्या बनाई थी, फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट का बनाया गया था। कौन सी, आंध्रा स्टेट बनाई गई थी। उसके बाद बहुत सारी डिमांड इरप्ट हो गई कि हमारी भी स्टेट को लिंग्विस्टिक बेस पे डिवाइड कर दिया, रीऑर्गेनाइज कर दिया जाए। तो 1953 में फैजल अली, इनके साथ दो थे और थे, KM पानीकर एंड HN कुंजरू, ठीक है, 3 बंदे थे। उन्होंने इसके ऊपर रिकमेंडेशन दी थी। मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था विद सम मॉडिफिकेशन। तो ग्रुप, हाँ, और उन्होंने ये भी रिकमेंडेशन दी थी कि ये जो स्टेट वाला सीन है ये एबोलिश कर दिया जाना चाहिए। और आफ्टर दैट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एक्ट 1956 के बाद क्या बना था, 14 स्टेट्स बनी थी एंड 6 यूटीज़ बनी थी। ओके, तो ये चीज़ कल वाले लेक्चर से आप देख लीजिएगा। हाँ, यही सब कुछ कहा गया है दोबारा से यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेंट्रल जू अथॉरिटी। ओके, इट इज़ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। दिस इज़ राइट। एक्चुअली ये स्टैट्यूटरी बॉडी है कौन से एक्ट के, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 के अंदर इसको बनाया गया है। ओके, एंड प्राइम मिनिस्टर इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द जू अथॉरिटी। दिस इज़ रॉन्ग। एक्चुअली नॉट प्राइम मिनिस्टर हियर, आपके जो एनवायरनमेंट के मिनिस्टर होते हैं ना, एनवायरनमेंट मिनिस्टर, वो इसके
चेयरपर्सन होते हैं। इट हैज़ द राइट टू रिकॉग्नाइज एंड डी रिकॉग्नाइज जूस इन इंडिया। यस, दिस इज़ राइट। ओके, तो ऑप्शन 2 इज़ रॉन्ग, दिस वुड बी द राइट आंसर। देखिए, कोई भी ज़ू बनता है ना आपके आसपास, अपने ज़ू देखे होंगे, चिड़ियाघर, वो इसकी परमिशन के बिना नहीं बन सकते। और कोई भी ज़ू में जो नया जीव लाना है, ठीक है, उसको बेचना है, कुछ भी इसके रिगार्डिंग, तो क्या होता है, इनकी परमिशन लेनी पड़ती है सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी की। ठीक है, ये बहुत मतलब कि एक अच्छी अथॉरिटी है आपको कंजर्व करने के लिए। देखिए, इन सितु कंजर्वेशन होती है, एक होती है एक्स सितु। ठीक है, जो इन सितु होती है मतलब जहाँ पे रह रहे हैं, जैसे कि जंगल में रह रहे हैं ना, टाइगर रह रहा है, ठीक है, टाइगर रह रहा है, तो उसकी वहीं पे क्या की जा रही है, कंजर्वेशन करी जा रही है अलग अलग तरीके से। बट अगर आप उसको उठा के किसी चिड़ियाघर में लेके आ रहे हो तो एक्स सितु कंजर्वेशन मॉडल कहा जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट देख लेते हैं इसके कुछ। हाँ, अभी ये न्यूज़ में क्यों थी कि न्यूयॉर्क टाइगर में क्या हुआ था, कोविड, ये जो टेस्ट पॉजिटिव आया था, ठीक है, तो उसकी वजह से इन्होंने क्या सभी जूज़ पे हाई अलर्ट कर दिया। तो जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बनी है, एंड और सब यही बातें कही गई हैं। और हाँ, एक बात याद रखना, नेक्स्ट टाइम जब आप जाओ कहाँ पे, ज़ू वगैरह में, तो इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना। ओके, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, नो पर्सन शैल टीज, मोलेस्ट, इंजर और फीड एनी एनिमल और कॉज डिस्टर्बेंस टू द एनिमल बाय नॉइस और अदरवाइज और लिटर द ग्राउंड इन अ ज़ू। समझ गए? अगली बार किसी भी जानवर को ना, शेर को देख लो, उसको बाहर से जंगले से ना चिढ़ाने का नहीं, और वहाँ पे कहीं भी ग्राउंड पे ना थूकने का नहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा पक्का। एंड सम और नो ज़ू शैल बी ऑपरेटेड, कोई भी ज़ू ऑपरेट नहीं किया जा सकता विदाउट द रिकॉग्निशन ऑफ दिस अथॉरिटी। और हाँ, नो ज़ू शैल एक्वायर, सेल और ट्रांसफ़र एनी वाइल्ड एनिमल और कैप्टिव एनिमल स्पेसिफाइड। देखिए, हाई कुछ स्केड्यूल बनाए गए हैं इस एक्ट के अंदर, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। उनको सबसे ज़्यादा क्या दी जाती है, प्रोटेक्शन दी जाती है। जैसे स्केड्यूल 1 में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है, स्केड्यूल 2 में पहले से थोड़ी कम बट औरों से सबसे ज़्यादा। तो ये स्केड्यूल हैं, इनमें मेन चीज़ें आप देख लीजिएगा स्केड्यूल की, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। आपको एक्चुअली करंट अफेयर में इसके बारे में अवेयर होते रहेंगे आप आहिस्ता आहिस्ता से। और बस यही है चीज़ें। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज़ कैन बी टेकन अप बाई NHRC, National Human Rights Commission. It is a statutory body. ओके, अंडर कौन से एक्ट के अंदर, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट 1993। ओके, कौन कौन से इश्यूज़ इनके द्वारा लिए जाते हैं? इशू ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है, जैसे कि क्या होता है, जो गटर वगैरह होते हैं उनको साफ़ करने के लिए ह्यूमन का यूज़ किया जाता है। और वहाँ पे आपको पता है गटर वगैरह में क्या होता है, गैसेस वगैरह निकलती हैं, जो एक्सक्रीटा होता है वो गैसेस वगैरह इरप्ट करता है, और जैसे कि मीथेन गैस, और वहाँ पे दम घुटने से बहुत सारे मैनुअल स्कैवेंजर्स की मौत भी हो जाती है। एक्चुअली मैनुअल स्कैवेंजिंग इन इंडिया इज़ इलीगल नाउ। तो ये इन चीज़ों पे भी अभी भी हो रही है, नो डाउट। अगर इलीगल है तो होना कहाँ से बंद हो जाएगी इंडिया में, ठीक है, बट हो रही है। बट अगर आप ऐसे करते पाए जाते हो, आपकी कंप्लेंट हो जाती है, तो डेफिनेटली द एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट यू। तो ये भी इशू लेती है, प्रॉब्लम फेस्ड बाय नोटिफाइड एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स। यस, ओके, एंड इश्यूज़ रिलेटेड टू राइट टू हेल्थ। ओके, बट यहाँ पे हमें एक और चीज़ के बारे में जान लेते हैं, नोटिफाइड एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में। देखिए, ऐसा था, एक एक्ट लाया गया था किनके द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। इनमें जो इस कुछ पर्टिकुलर ट्राइब्स में जन्म लेते थे उनको जन्म से ही क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता था, ठीक है। ये बहुत आप बोल सकते हैं कि बेतुका सा, घटिया सा एक एक्ट था। इसमें डी नोटिफाइड ट्राइब्स थी, जैसे कि ट्राइब्स लेवल्ड एज क्रिमिनल थ्रू अ लेजिस्लेशन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड बट डी नोटिफाइड पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो कि इस एक्ट के द्वारा क्या क्रिमिनलाइज कर दी गई थी ट्राइब्स को, उनको उस एक्ट में से डी नोटिफाई कर दिया गया। तो उनको क्या नाम दिया गया, दे दिया गया डी नोटिफाइड ट्राइब्स। एंड नोमैडिक ट्राइब्स
वो जो कंटिन्यूसली क्या करती रहती हैं, एक जगह से दूसरे जगह में घूमती रहती हैं फॉर मतलब कि मेन तो अपना खाना ही है ना, पेट के पीछे इधर उधर भागेंगे, तो वो नोमैडिक ट्राइब्स कहलाई जाती हैं। और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स क्या होती हैं, जो एक घूमती तो हैं, नोमैडिक तो होती हैं बट सेमी फिर से उसी जगह पे वापस आ जाती हैं, तो दैट इज़ सेमी नोमैडिक। तो ये था। फिर इसको आफ्टर इंडिपेंडेंस किससे रिप्लेस कर दिया गया, हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट। ठीक है, हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट किसके बेसिस पे लाया गया, इसको रिप्लेस करके गवर्नमेंट के द्वारा हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट ला दिया गया। ओके, तो ये था। इसके बाद हाँ, अभी देखिए इसमें ना ये वाला इदाते कमीशन याद रखिएगा। इदाते कमीशन इस आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इदाते कमीशन इज एसोसिएटेड विद नोटिफाइड ट्राइब्स, डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। ओके, इसके रिगार्डिंग इन्होंने रिकमेंडेशन दी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन है। ओके, तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें कौन कवर करता है, NHRC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आर्टिकल 368 आपको पता है क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर रखता है, बट कुछ ऐसे भी प्रोविज़न हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो करते हैं बट विदाउट यूजिंग आर्टिकल 368। सच में सही बात बोल रहा हूँ, ठीक है लक्ष्मीकांत, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आपका कौन सा वाला, एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, आपका 1 to 4 आर्टिकल इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। बट आर्टिकल 4 ये कहता है कोई भी अमेंडमेंट आर्टिकल 2 and 3 में जहाँ पे नाम वगैरह चेंज करना है, इंटरनली क्या करनी है, स्टेट्स का एरिया कम बढ़ाना है, ठीक है, अगर वो चीज़ें होती हैं तो वो क्या होगी, वो अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर की नहीं मानी जाएगी। ठीक है, वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ ही पास कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तो गलत हो गया, 2 गलत हो गया, तो आपका आंसर तो सीधा ही आ गया। हाँ, तो आर्टिकल 368 के अंदर कौन कौन सी मानी जाती हैं, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, यस, एंड चेंजेस इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। एक तो हो गई, जैसे कि और भी प्रोविज़न हैं वैसे सिंपल आपकी रिक्वायरिंग सिंपल मेजॉरिटी के हिसाब से कौन कौन सी होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। ओके, पहला तो रिक्वायरिंग सिंपल मेजॉरिटी, जिसमें कि ये वाली सेकंड शेड्यूल में कुछ चेंजेस लाने हैं। कोरम होता है मिनिमम बंदे होने ही चाहिए अगर पार्लियामेंट का सेशन शुरू करना है, तो ये अगर इसमें कोई चेंजेस लाने हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्ट्रेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जैसे मैंने बताया, एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट, ओके, एंड डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये भी इसके अंदर आता है। 5th and 6th शेड्यूल में कोई चेंजेस लाने हैं, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाता है। बट कुछ ये भी है रिक्वायरिंग स्पेशल मेजॉरिटी यूजिंग आर्टिकल 368, जैसे फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस लाने हैं, DPSP में चेंजेस लाने हैं, और वो सारी चीज़ें जो कि इसमें कवर नहीं होंगी, तीसरे रिक्वायरमेंट में और फर्स्ट में कवर नहीं हुई थी। ठीक है, वो सारी की सारी आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड की जाएंगी। और एक बहुत ही ख़तरनाक मेजॉरिटी की बात होती है। पहले तो स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में समझा दिया गया है। स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा हमने तीनों पढ़ लिए हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एंड सिंपल मेजॉरिटी। अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, तो पीछे वाले जो लेक्चर हैं उनको रेफ़र कर लीजिएगा। एक होती है आपकी स्पेशल मेजॉरिटी फॉर द पासेज एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, इसमें कुछ प्रोविजन जैसे कि स्टेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, इसमें क्या हो चाहिए होगी, स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए होगी, और अगर हाफ ऑफ द स्टेट्स भी रेटिफाई कर देती हैं उस चीज़ को, तभी वो चीज़ पास होएगी। और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के रिगार्डिंग कुछ प्रोविज़न होंगे, उनको चेंज करना है पार्लियामेंट के द्वारा, तो इसमें भी ऐसा ही केस होएगा। प्रेसिडेंट के इलेक्शन, ठीक है, उनको भी इसी रेटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर वाले केसेस में डाला जाता है। एंड 7th शेड्यूल में कोई चेंजेस करना है जो कि हमारा फेडरलिज्म वाला कंसेप्ट दिखाता है। ठीक है, एंड अगर आर्टिकल 368 को ही खुद को ही चेंज करना है तब भी ये चीज़ यूज़ होएगी। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। अरे वाह, अभी तो हमने डिस्कस किया है ना इसको। टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट एज ऑफ 6 years। तो ये किस में है? ऑब्वियसली यार DPS में आर्टिकल 45 किस चीज़ ने इसको डाला था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 ने। ओके, तो ऑप्शन बी इज़ राइट। यस, ऑप्शन बी इज़ राइट। तो हाँ, DPSP कहाँ से लिए गए हैं? DPSP हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ से कॉपी करें? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर स्टार्टेड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज़? स्टेटेड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्या क्या बातें इनमें से? देखिए, आपको ना एक तीखी सी नज़र बार बार रिवीजन के दौरान ही ये चीज़ें संभव हो पाएंगी। आपको एटलीस्ट मैंने आपको पहले बताया आर्टिकल 51A तक आपको पूरे के पूरे चीज़ें पता होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा सा आप लीनियंसी बरत सकते हो किसमें? सिटीज़नशिप में। सिटीज़नशिप के रिगार्डिंग आपको करंट के बेसिस पे जो भी हो रहा है उनको अच्छे से जानना है। ओके, तो इसमें आपका एलिमिनेट करना है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर नहीं है। ठीक है, आपने पढ़े होगी कितनी टोटल ड्यूटीज़ हैं? मैंने आज ये भी बताया 11 हैं। पहले 10 थी, 11वीं 86 अमेंडमेंट से डाली गई। टू प्रोटेक्ट द इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, ये है। टू प्रोटेक्ट द मोन्यूमेंट्स विच आर डिक्लेयर टू बी नेशनल इम्पोर्टेंस, नहीं, ये नहीं है। ओके, अगर 3 को कैंसिल कर दें तो 2 को कैंसिल कर दें, एक ये, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 4 देख लेते हैं। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, यस, ऑप्शन सी इज़ राइट। आप पक्का से देखिएगा इस चीज़ को, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं है। देखिए, ये सब चीज़ें आर्टिकल 51A के अंदर 11 ड्यूटीज़ बताई गई हैं। नेशनल फ्लैग वगैरह, नेशनल एंथम की हमने क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है। नोबल आइडियाज़ को इंस्पायर करना, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हमने सीखे हैं। ठीक है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड कंट्री को, जब भी कंट्री को ज़रूरत हो हमारी, तो हमें नेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड प्रमोट हारमनी, ब्रदरहुड, कॉमन ब्रदरहुड वगैरह वगैरह, ये सब मेन चीज़ें आप सरसरी नज़र रख लीजिए ना, तो आपके माइंड में इम्बाइब हो जाएंगी, और आप इतना हार्ड नहीं आएगा। ठीक है, एलिमिनेट कर दोगे अगर आप ना, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एंड प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करी गई है। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, लेक्स वगैरह वगैरह। साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज़म, इसको बढ़ाना है। पब्लिक पॉवर्टी एंड अपचर, मतलब कि पब्लिक प्रॉपर्टी को हैम्पर नहीं करना है, और वायलेंस वगैरह को छोड़ देना है, ये चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, एंड टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी नेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, ये आर्टिकल 49 के अंदर बताया गया है DPSP के। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप बेनिश्चित होके कहाँ पे कमेंट कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे। और अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद ना आई हो, फिर भी आप डिसलाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको सच में अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और एक अच्छा क्लाइमेट पैदा कर सकें हम। ठीक है, एजुकेशन के रिगार्डिंग। So knowledge shared is equal to knowledge care. Have a good day ahead.